Hello students, today in this lecture we will discuss the properties of scalar product of two vectors. Okay, properties of scalar product of two vectors. लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया कि टू वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो टू टाइप्स की होती है, जिसमें एक स्केलर प्रोडक्ट थी और दूसरा आपका वेक्टर प्रोडक्ट थी। स्केलर प्रोडक्ट में आपको बताया गया था कि किन्हीं दो वेक्टर्स की जो स्केलर प्रोडक्ट होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू mod of a multiply by mod of b and multiply by cos theta, where theta is the angle between the vector a and b, like this. This is vector a and this is vector b and the angle between them is theta. Okay, then the dot product or scalar product of vector A and vector B is defined as mod vector A into mod vector B into cos theta into cos theta. शायद स्मॉल लेटर्स में आपको कराया गया था पिछली बार, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे वेक्टर A dot vector b equals to vector mod of vector a mod of vector b into cos theta. देखिए एक बात ध्यान रखिए, यदि आप बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज की, मतलब नंबर्स की, तो उनके बीच में आप इस डॉट को यूज करिए, चाहे मल्टीप्लिकेशन का साइन जो आपका क्रॉस है उसे यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख दीजिए आप, या 2 डॉट 3 लिख दीजिए। तो स्केलर नंबर्स के केस में ये दोनों ही आपके क्या होंगे, सेम होंगे, बट वेक्टर्स के केस में दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है, इसलिए इनमें जो डिफरेंस है उसे याद रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट अलग है और वेक्टर प्रोडक्ट अलग है। जब शुरुआत में बच्चे इसे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उनका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए थोड़ा सा आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करें और इसे ये मानकर चले कि ये भी मैथमेटिक्स का एक रूल है। जो अभी आपके पास शायद 11th में या 12th में टॉपिक आएगा मैट्रिसेस, उसमें ये पढ़ाया जाता है, बट वहाँ पर मैट्रिक्स पर फोकस रहता है, ये नहीं कोई बताता कि मैट्रिक्स बना कहाँ से। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम। तो प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, द डॉट प्रोडक्ट। ओके, ये जो डॉट प्रोडक्ट है आपकी, ये आपकी cos थीटा पर डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो cos थीटा है, इसकी जो वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करती है। थीटा आपका 180 डिग्री भी हो सकता है, उससे लेस दैन भी हो सकता है, उससे ग्रेटर दैन भी हो सकता है, 90 डिग्री से लेस दैन भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि कोसाइन की जो वैल्यू है निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ए डॉट बी है वो प्रोडक्ट आपकी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं the dot product or scalar product, the dot product of any two vectors may be positive और नेगेटिव
और 0. Case first. In that case first, if theta is greater than 0 but less than 90 डिग्री, या ऐसे कर लीजिए, if theta is greater than 0 and less than 90 degree, then theta is an acute angle. Okay, then cos theta will be positive because the value of cos or each trigonometric function in first quadrant is always positive. Implies that vector A dot B will be positive because the mode of any vector is the length of that vector, and the length of any vector or arrow always is a positive number. Okay, so this is positive and this is also positive and this is also positive, so the product of all positive numbers will be positive. And now in second case, if theta is greater than 90 degree but less than 180 degree, then the angle theta is an obtuse angle. Okay, in that case the value of cos theta in second quadrant will be negative. You know very well, according to trigonometry. So the dot product of vector A and vector B will be negative. Thus we can say that the product of any two vectors, dot product of any two vectors, the sign of dot product of any two vectors depends only on the factor cos theta. Okay, and now third case is if theta is 90 degree, that is right angle, then the value of cos theta will be 0. Okay, so the dot product of vector A and vector B will be equals to 0. That is, if any two vectors are perpendicular to each other, then the dot product of that vectors will be 0 and vice versa. तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपको टू वेक्टर्स दिए गए हैं और वो कहता है कि सो दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक मेथड तो आपके पास है कि आप ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर दीजिए, बट दूसरा मेथड आपके पास ये भी है कि आप उनकी डॉट प्रोडक्ट निकालिए और डॉट प्रोडक्ट यदि 0 आ गई तो 0 आने पर जो कोस का फैक्टर वो 0 होगा, क्योंकि जो वेक्टर की लेंथ है वो 0 नहीं होगी, तो 0 होगा तो 0 कोस की वैल्यू तभी होगी जब वो थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो उनके लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होनी
चाहिए, यदि आपको दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उनकी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है, और यदि वो जीरो है तो वे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली क्वेश्चन इस पर पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, तो इस पॉइंट को आप रिमेंबर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब बात करते हैं जीरो एंगल की। किसकी बात करेंगे, जीरो एंगल की, केस 4। देखिए मैंने आपको बताया है कि मैं जो भी कुछ कराऊंगा ऑन द बोर्ड कराऊंगा और डीपली कराऊंगा, बेसिकली कराऊंगा, हर कंसेप्ट आपको क्लियर कराकर चलेंगे। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, बिल्कुल हर टॉपिक आपको क्लियर कराया जा रहेगा। आप जैसे मान कर चलिए कि जैसे भी एक ऑनलाइन कोचिंग चलती है, ट्यूशंस चलते हैं, ऐसे ही आपको कराया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए केस 4, इफ थीटा इज 0 देन, जीरो का मीनिंग क्या होगा कि जो दो वेक्टर आपको दिए गए हैं वे क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो पैरेलल कंडीशन में क्या होगा कि जो cos 0 की वैल्यू है आपकी, cos 0 will be equal to 1, implies that vector A dot vector B equals to mod vector A mod of vector B. That is, this product will be same as simple product you know in algebraic mathematics। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से मैथमेटिक्स में जैसे आपने पढ़ा है टू नंबर्स की प्रोडक्ट, उसी तरह ये बिहेव करेगा। बट ये ऑलवेज जो प्रोडक्ट है आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी पैरेलल की कंडीशन हो गई, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और इसका कोई एप्लीकेशन भी नहीं है जो आप यूज़ करें। तो परपेंडिकुलर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से मिला है, यहाँ से कोई ज़्यादा इच्छा आपको कंक्लूजन नहीं निकल पाया है पैरेलल के लिए, इसे यहीं पर छोड़ते हैं और इसी पैरेलल कंडीशन को हम स्टडी करेंगे इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो इन 4 प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो थर्ड है, कंप्यूटेशन लेवल पर सेकंड और फर्स्ट और थर्ड तीनों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बोल देता है कि टू वेक्टर्स दिए गए हैं आपको और उसमें एक कोई अननोन क्वांटिटी डाल देता है, कहता है कि बताइए कि किस इस नॉन वैल्यू की किस वैल्यू के लिए इनके जो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा वो एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा। तो आपको करना कुछ नहीं होता है कि ए डॉट बी को पॉजिटिव लाना है, एक्यूट लाना है तो ग्रेटर देन 0 ले लीजिए, आपको ऑब्ट्यूज लाना है तो ए डॉट बी को लेस देन 0 ले लीजिए। ठीक है, कंप्यूटेशन लेवल का काम हो गया। अब अनदर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है 2, सेकंड प्रॉपर्टी। अब आप ये देखिए कि जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है टू नंबर्स की प्रोडक्ट में 2 × 3 = 6 and 3 × 2 is also 6। That means 2 × 3 is equal to 3 × 2। That is the numbers satisfy द कम्यूटेटिव लॉ। तो जो नंबर्स आपके होते हैं उनमें कम्यूटेटिव लॉ आपका क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, होल्ड होता है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या आपकी जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें कम्यूटेटिव लॉ आपका होल्ड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ आपका चेक करते हैं कि होल्ड है या नहीं है। तो हेडिंग डाल लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सॉरी, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाएगा, वेक्टर ए का मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये एंगल आपने इस डायरेक्शन में मेजर किया थीटा। एंगल की डायरेक्शन होती है ना, आपने पढ़ा होगा। देखिए इस डायरेक्शन में एंगल को मेजर करोगे तो पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं तो निगेटिव, क्योंकि एंगल भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वो आगे चलने पर आपको बताया जाएगा कि किस कंडीशन में एंगल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखिए ये हुआ। अब हमें इनको फाइंड आउट करना है। एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए,
अब आप बताइए मोड ऑफ वेक्टर बी, मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस। अब आप बताइए, अभी तक मैं जो डायग्राम बनाता हुआ आया उसमें आपको ऐसे एंगल दिखाया गया, लेकिन जनरली आप जानते हैं कि एंगल कैसे मेजर किया जाता है, इस डायरेक्शन में मेजर किया गया ना। तो कहाँ से मेजर किया गया? फ्रॉम ए टू बी। अब आप देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? बी। तो अब एंगल कहाँ से मेजर किया जाएगा? बी से ए की ओर। यहाँ पर ए से बी की ओर हुआ था ना, फर्स्ट से सेकंड की ओर, तो यहाँ पर भी क्या होगा? बोलिए, फर्स्ट से सेकंड की ओर। तो बी से आपको किधर की ओर मेजर करना होगा? बी से ए की ओर जब मेजर करेंगे तो ये क्या होगा? माइनस थीटा। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए माइनस थीटा की वैल्यू, ऐसा कर दीजिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो बी की वैल्यू आप मेजर, बी से ए की ओर एंगल मेजर करना है, तो आप ये भी ले सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। आपकी मर्जी, ये भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। तो आप बताइए कोस माइनस थीटा इज आल्सो इक्वल टू कोस थीटा। तो इस, ये आपके नंबर्स हो गए, तो इसमें तो आपका कम्यूटेटिव लॉ आल्सो होल्ड होता है। तो यहाँ पर आप इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी एंड कोस थीटा, बिकॉज कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। क्लियर है ना? अब आप देखिए ये आपका हो गया, ये क्या है आपका? वेक्टर ए डॉट बी। दैट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ इज होल्ड गुड इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो यानी कि हम डॉट प्रोडक्ट के केस में आपके जो वेक्टर्स है उनका जो ऑर्डर है उसे चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ holds good in डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अच्छे से पालन होता है डॉट प्रोडक्ट में, कम्यूटेटिव लॉ का अच्छे से क्या होता है? पालन होता है। तो चलिए, यहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ गई होगी। अभी हमें क्या करना है कि अभी तो ये वेक्टर्स की फॉर्म में आपको पता है कि एक वेक्टर ये एक ये है और इनके बीच का एंगल है। यदि आपके पास साथ ऐसा हो जाए कि वेक्टर ए को आपको मैथमेटिकल फॉर्म में दे दिया जाए, जैसे 2i + 3j + 4k, और ऐसे दूसरा वेक्टर दे दिया जाए, बोला जाए कि इनकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, तो उस कंडीशन में हमें डॉट प्रोडक्ट के जो रूल्स हैं वो i, j और k की फॉर्म में पता होने चाहिए। तो हम यहाँ पर यही करेंगे कि इनकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे i, j, k कैप के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी इसी स्टेप को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? i, j, k कैप के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो मेन टॉपिक आज का वही था, ये भी कराना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें और भी आता है, उसे भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं, इन्हीं से रिलेटेड है। थर्ड प्रॉपर्टी से ले लेता हूँ पहले। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी यहाँ पर? सेल्फ प्रोडक्ट। क्या है? सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर। देखिए जनरली इसे जो है डिफरेंट नाम से जाना जाता है, तो मैं तो सेल्फ प्रोडक्ट के नाम से इसे बुलाता हूँ। तो आपको करना क्या है कि सेम वेक्टर ए के साथ ही आपको क्या करनी है? डॉट प्रोडक्ट। देखिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपको वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करना हो तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दिखाऊंगा कैसे करेगा हेल्प। तो ज़रा यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कीजिए, मोड ऑफ वेक्टर ए और एंगल बताइए जरा इनके बीच का क्या है। तो वेक्टर ए का वेक्टर ए से एंगल क्या होगा? जरा देखिए, सपोज कर लीजिए वेक्टर ए है तो दूसरा भी वेक्टर इसी पर होगा ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0। तो यहाँ पर ले लीजिए 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर ए और इसका स्क्वायर, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द मोड ऑफ वेक्टर ए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर क्वांटिटी का, दैट मीन्स स्केलर फॉर्म है।
और यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज की डॉट प्रोडक्ट है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि मान लीजिए आपके पास कोई इस प्रकार ट्रायंगल है, तो हमें क्या करना है कि इसके और इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है कुछ इस तरीके से। तो उस केस में हमें पता है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड तो है नहीं कि वेक्टर ए और बी में कोई रिलेशन बता दें ये बराबर है या हाफ है या कुछ है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इनके स्क्वायर्स को ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो आप ये तो नहीं लिख सकते ना वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, बट इनके मोड क्या लिख सकते हैं, इक्वल। अब आप क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए इनका स्क्वायर करेंगे। अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड से, बट इसे आप लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट ए इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड फॉर्म्स को वेक्टर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जगह प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में ये हेल्प मिलती है इससे। तो कहीं पर ऐसा पॉइंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, वैसे है आपको कराया गया था तो उस कंडीशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसी के बाद उसकी एप्लीकेशन ले लेता हूँ, उस पॉइंट को छोड़ देंगे, कल कराएंगे। तो चलिए, तो ये सेल्फ प्रोडक्ट बोली जाती है। तो अब इसकी एप्लीकेशन देखिए। आपने पीछे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था ना, और उसमें हमने क्या किया था कि टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था। ये आपका वेक्टर आर ए था, ये आपका वेक्टर बी था, और इन दोनों का आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था। रिजल्टेंट के लिए आपने क्या किया था, एक इस तरीके से पैरेललोग्राम फॉर्म किया था, क्लियर है ना। और इसका जो रिजल्टेंट था ये बताया गया था कि डायगोनल के द्वारा शो होता है, इसे आपने वेक्टर आर का नाम दिया था, क्लियर है ना। तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी वेक्टर कितना होगा आपका, बी हो गया ना। अब आप बताइए जरा, फ्रॉम द डायग्राम वेक्टर आर विल बी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एग्जाम में दे देगा इस तरीके, वहाँ पर आपने ज्योमेट्रिकल मेथड से मैथमेटिकल मेथड फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए हम डायरेक्ट मैथमेटिक्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है और सम ऑफ टू वेक्टर्स, वहाँ पर भी यही किया था। तो इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें टू वेक्टर्स का सम दिया गया, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। चलिए अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपको करना क्या है, इसकी सेल्फ प्रोडक्ट ले लीजिए। क्या ले लीजिए, सेल्फ प्रोडक्ट। टेकिंग, ध्यान से देखिएगा, सेल्फ प्रोडक्ट ऑन बोथ दी साइड्स। ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट वहां पर छूट भी गया था, वो भी पॉइंट आपका डिस्कस हो जाएगा। आर डॉट आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ये हुआ ना, क्लियर है यहाँ तक। यदि कोई डाउट हो तो बोलिएगा जरूर, कमेंट करिएगा। तो आर डॉट आर विल बी इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर। अप्लाई कीजिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है विद साइन डॉट, ए डॉट प्लस, ऑर्डर का ध्यान रखिए, ए डॉट बी, अब आ जाइए इसके साथ, बी डॉट ए प्लस बी डॉट। देखिए जो रूल आपको बताए गए उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। यहाँ पर चलिए, ये बन गया, इसे मोड वेक्टर आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, जैसे वहां पर लिया था सिंबल, और ये बन गया आपका मोड ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी। अब देखिए ऑर्डर चेंज हो सकता है क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स होता है इसमें, तो आप लिख सकते हैं इसे ए डॉट बी प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये आपका 2 टाइम्स हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डॉट प्रोडक्ट ओपन करिए, 2 मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस
थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल थीटा हो गया। चलिए अब आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इसे ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, कोस थीटा। आप जरा ध्यान से देखिए, ये वही फॉर्मूला है जो वहाँ पर हमने मैथमेटिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड आपको कराया था, वेक्टर सम ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कराया था ना। तो देखिए सेम आया या नहीं आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इस केस में कि आप कैसे देखिए कितनी जल्दी से आपने ये रिजल्टेंट फाइंड आउट किया, वहाँ से आपने बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई की थी राइट एंगल ट्रायंगल की और ट्रिग्नोमेट्री की। बट यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपली आपको एक बार स्टार्ट करना है और ऐसे फाइंड आउट करना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जाम में इस प्रॉपर्टी बेस पर पूछी जाती है। कभी यहाँ पर माइनस दे देता है, कभी प्लस देता है, कभी यहाँ 2 टाइम्स दे देता है, कभी 3 वेक्टर्स दे देता है। तो आपको अपने आप ही एडजस्ट करना है कैसे आपसे सोल्व कर सकते हैं। इसमें यहाँ से एक पॉइंट का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको पेयरिंग हमेशा उन 2 वेक्टर्स की करनी है जिनके बीच में आपको क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। यदि आप इस वेक्टर को यहाँ ले जाएंगे तो आपका एंगल आर और ए के बीच का फाइंड हो जाएगा। जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट बनेगी वहीं पर एंगल आएगा और एंगल वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट वहाँ पर बनेगी जहाँ पर पेयरिंग आपने की हो। ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। इसी को हम एक अनादर रूल के नाम से भी जानते हैं। सपोज कर लीजिए, एक्स्ट्रा कर रहा हूँ इसमें, ये जो R है ये इक्वल टू आपका क्या हो गया, C। क्या हो गया, C। तो ये जो C हो जाएगा तो एक तरीके से ये साइड C बन जाएगी। एक ट्रायंगल बन गया ना, जिसकी एक साइड A है, एक B है और एक क्या है, एक ये B हो गया और ये आपका क्या हो गया, C हो गया। कुछ इस तरह का हुआ ना, ये A, B और C ऐसे। तो आप देखिए अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कंडीशन पढ़ी थी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट अब इस ट्रायंगल के लिए भी हम इसकी हेल्प से प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार, यदि R इक्वल टू C हो तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये A और B के बीच का एंगल था तो ये एंगल बनेगा यहाँ पर C। कितना बनेगा, C। क्लियर है ना। तो छोड़िए जो भी कुछ है, तो आप यहाँ से देखिए cos थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना होगा, C स्क्वायर माइनस, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ट्रायंगल के केस में। तो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ सकता है, बट शायद फॉर्मूला तो यही। तो यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं कि वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर आपका C है। तो देखिए एंगल कहाँ पर बनेगा, एंगल बनेगा ये यहाँ पर। और यदि हम ये थीटा मानते हैं तो ये बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह आपको 180 डिग्री माइनस थीटा पुट करना होगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू होती है नेगेटिव 2AB कोस थीटा। implies that cos theta will be equals to A square plus B square minus C square by 2AB। इसे बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। ये आपका क्या हो गया, कोसाइन रूल, जो पहले सिलेबस में हुआ करता था 11वीं क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में, बट अब सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है ना। तो आप कंप्लीशन लेवल के लिए इसे याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस सिचुएशन में राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता है, यहाँ पर ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है ना। तो यदि आप चेक करना भी चाहते हैं कर सकते हैं। यदि राइट एंगल ट्रायंगल हो तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और ये 90 डिग्री होगा, कोस 90 जीरो हो जाएगा। तो ये आपका बेस जो है यहाँ पर जाएगा। तो आप देख लीजिए डिनोमिनेटर जब यहाँ पर जाएगा तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा C स्क्वायर। ठीक है ना। तो वो भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। तो ठीक है, तो इसे यहाँ तक करिए। यदि आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।